So welcome everybody. Cash flow management is a very important part, like what Gunjan introduced, of any organization. And I think Team Computers is relatively, anybody who's been in touch with Ranjan sir for a little bit of time understands this concept. But today I'll dig a little deeper and explain to you why accountants are so fascinated by this aspect. And over the period of the past 10 years, it has grown in importance even in the reporting and in the way in which balance sheets and accounts are presented. So I think this statement everybody would have heard. I've heard Aegis also talk about sales is vanity, profit is sanity, and cash is reality. This is the crux of preparing a cash flow statement. Sales, a lot of people, do aggressive selling, and in the search for profits, they sometimes forget cash. But ultimately, businesses run on cash. So the basic thing is that many years ago, maybe 30 years ago, 40 years ago, there was a system where you had an accrual basis of accounting and a cash basis of accounting. So small businesses, and if you look at the Marwadi Patta system also, so the Marwadi Patta system also drew very heavily from the cash system. So if we go on the cash system of accounting, there is a system called the cash system of accounting. If we go into that system, then there is no difference between the cash profit and the profit as per the profit and loss. So it is not as if the cash system of accounting is not there. It is there, but it is for very small businesses and for very uh, people who mainly, chai wala or somebody like that who's dealing in cash में खरीद रहा है, cash में बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, रोज पेट्रोल डाल रहा है या थ्री व्हीलर चला रहा है, पेट्रोल डाल रहा है और किराया ले रहा है. So that is a cash system of accounting. When businesses grow a little larger, then complexities increase, and therefore we have to do away with the cash system of accounting, and cash system of accounting is no more relevant in those situations. So the main differences between a profit and loss as per the accounting system and the cash basis of accounting is stems on account of realization or collections. In the profit and loss statement, we are not concerned about collection. We are based on transaction for making sale. Whereas in a cash system, we only recognize revenue when we collect it. So this is the fundamental difference between a cash system and the accrual-based accounting, as it is called. The second concept which I want to share with everybody is that asset purchase and incurring of liability is a cash event, but it is not a P&L event. And this is where a lot of confusion comes in when it is coupled with depreciation. So when an asset is purchased, it does not impact the cash flow. But since the asset has a useful working life, it is melted slowly over many years. So cash तो हमने पहले दे दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने उसके छोटे छोटे chunks निकाल के over the next couple of years we adjust the profit and loss account accordingly. So when the asset is purchased, it impacts cash but not the P&L, and the reverse happens when depreciation is happening. When depreciation is happening, it impacts the P&L and it does not impact cash. So this is the principal difference between accounting by cash basis and accounting on accrual basis. And this is a very, it's a simple concept, but sometimes it becomes a little difficult to absorb this and to understand this. I would request everybody to understand this, and if there are any questions, you can always come back to it. The last part of the difference between a cash system and an accrual-based system is that there are various provisions which are taken into the profit and loss account.
One example of this is our gratuity. Businesses should account for the amount of gratuity that they incur in any business year. And this is normally done by way of provision. So what we do is we assess how many employees do we have, what is their age in the business, and how much gratuity we will have to pay eventually when these people leave the organization or when they retire. What will be the cash that will be paid to them? But since we are not paying the cash immediately, we make a provision or we allow for those expenses in our profit and loss account. So these are some of the adjustments which are made. And there are many other complex adjustments like foreign exchange adjustments and other adjustments for bad debt provisions and other provisions. I will not get into that because that will make it extremely technical. But suffice it to say that the main reason for difference between the accrual system of accounting and the cash-based system of accounting is on account of these 4 points. So I will elaborate the first point first. I am sure everybody in Team Computers, I know that they are aware of this principle. Everybody understands that we have to collect before we pay. So I made a simple example. Arvind buys a computer for 1 lakh rupees on 1st of November and sells it on the 5th of November for 125,000 rupees, 1.25 lakhs. On the 1st of December, when the P&L for November is published, we show a healthy profit of 25,000 rupees. But since the payment for the purchase has to be made in 90 days and the collection happens after 120 days, there will be a mismatch in purchase and collection and payout. So there is a payout of 100,000 rupees, which will hit in 31st January. And their collection will happen only on 5th of March. So there will be a 25,000 rupees which will be invested by Arvind into his business to earn, there will be a 1 lakh rupees which will have to be invested by Arvind in his business to earn a profit of 25,000 rupees. Now this much I know everybody in Team Computers understands. I want to talk about the next slide, which is that usually collections are uncertain and payments are certain. So that is why the finance department and everybody else takes more time to look at and is scared of giving credit. So every time the finance department looks at the prospect of giving a credit or giving a sanction to a customer, it is because of this principle that collections by nature are uncertain, but payments are certain. Why are payments certain? Because we are buying, like Team Computers, our principal suppliers are Ingram, Redington, and a couple of large distributors. Even if one customer defaults on a small amount, we cannot hold up the payment of our distries indefinitely. So therefore, collection is uncertain and payments are certain. Good businesses do not come into this situation where they have to pay more than they have to collect. This is normally avoided by good and efficient businesses. Businesses are run in a manner where our collections happen before we make the payment. There is a general tendency to finance this deficit from bank limits, and there is nothing wrong with that, provided our collections continuously, it is an aberration. It is not a continuous event. For example, so in the month of November, we are to pay out more than we are to collect. So we may look at borrowing a little bit in November, but it should not sustain. In December, in January, we should recover that amount and we should come back to our normal situation. So what happens is that over a period of time, we are able to grow our cash balance. To explain this, debtors and inventory is termed as working capital. So any time our debtor and inventory increases, more working capital is required, more cash is required. But then the question comes that when the business is growing,
then should we not have more cash? We will need more cash. Where will that cash come from? That cash will come from our profits, from what we have earned during the years. For example, in Team Computers, we are now seeing a situation where we have started creating cash balances in our company. Also examples of situations where we collect from customers before we pay to the vendors. This is called a negative working capital, and this results in surplus cash. So some of the largest companies in India and worldwide, they operate on what is called a negative working capital basis, which means that, for example, a Maruti sells its cars to its dealers. So Maruti will only sell its cars to the dealers once the dealer has given an advance payment to Maruti. So the car has not even reached the dealer, but Maruti has already got the money. But with its vendors, it has a 30-day credit, 45-day credit. So it has that interim 30 to 40 car. To make a car, it does not take Maruti 30 days. So the amount of money that Maruti collects from the dealers is actually its negative working capital. And this is a sign of great businesses. Any great business displays the sign that it does not need cash and it is therefore throwing up surplus cash. So इस business में क्या हो रहा है कि not only is it able to collect before it is able to pay, but it is also earning profit. तो एक जगह तो उसका जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसके दो इंजन वर्क कर रहे हैं. एक तो और डीलर्स उससे और गाड़ियां मांग रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मारुति की बात करूं तो उसको एडिशनल पैसे मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि उसके बिजनेस में इनहेरेंटली वैसे ही प्रॉफिट है, सो दे आर जनरेटिंग मोर प्रॉफिट, दे आर जनरेटिंग मोर कैश. सो गुड businesses have what is free cash flow. These are called free cash flows. So this is a sign which any investor will look at when they are investing in businesses, that is the business able to generate free cash flow. Now there are some businesses, I'll spend one more minute on free cash flow. There are some businesses which are very heavily and very aggressively investing into the market. For example, startups. Startups do not have this free cash flow situation. As a matter of fact, they have a cash burn. Ulta concept hai, aapne suna hoga. There is a thing called a cash burn. So they have they need to use cash. Think that. So they need to burn the cash. Now that is a very tricky situation. Investors don't like that, and mostly only very select few investors will invest in such companies. It is not that they will not invest, but only very few people will invest in such companies. Sooner or later, even startups have to display surplus cash mentality, and they have to, in some time, in some situation in their life, they have to come and become cash surplus. So I hope this concept of negative working capital and free cash flow has been grasped by everybody. If there's any questions, I will take it up in the session in the 15 minutes after this presentation. This is the assets and liabilities concept. So whenever we purchase an asset, it is not an event which is in the profit and loss account. It is an event which is in the balance sheet account. So balance sheet में एक जगह हमारा कैश पड़ा होता है, कैश कम हो जाता है, और हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है. तो नेट इंपैक्ट जीरो होता है. कैश कम हुआ, एसेट बढ़ गया, नेट इंपैक्ट जीरो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं आया. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने लाइबिलिटी इनकर करी तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड के ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और डेबिट साइड के ऊपर कैश इंक्रीज हो जाता है. दोनों आपस में बैलेंस आउट कर जाते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं आता. These transactions do not impact the profit and loss account. Having said that, like I explained earlier, whenever we incur an asset,
उसका अगर यूजफुल लाइफ है, इफ इट इज नॉट लैंड, only land is not depreciated, all other assets are depreciated. If it is anything other than land, then it will have a useful life, and that will be spread, that expense will be spread over the useful life of that asset. We will take small portions out of the profit and loss and adjust the asset. We will reduce the asset value till it becomes zero. So the cash event has happened on the purchase of the asset, but the deduction of that happens over a period of time where no cash actually goes out, but the profit and loss is adjusted. So this is as far as the asset and the liabilities is concerned. So I think I've already explained this, that buying an asset does not impact cash. However, since the asset has to be depreciated over its useful life, then the asset is written off from the profit and loss account. Now, this is where a little bit more of deliberation is required. There are two kinds of depreciation. So depreciation, one in which we take in our books of accounts, which means our regular accounts, which are prepared as per the Companies Act. And the second is a depreciation which the income tax department allows us to have. So there is this difference between these two depreciations. Asset तो वही है, लेकिन income tax department generally allows us to depreciate at a higher rate while calculating a taxable profit. तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी कहती है कि मैंने अपने कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं और उसमें हमने कंपनीज एक्ट की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है. जब हम इनकम टैक्स में जाते हैं तो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर हम इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करके वो वाले अकाउंट्स बनाते हैं. तो हमारा डिफरेंस क्यों है? Why is the income tax department creating this unnecessary complexity? The reason is that Income Tax Act is a tool with the government. It is called a fiscal tool. Government gives us a higher rate of depreciation so that businesses are able to reduce their taxable profit. And by doing this, Income Tax Department is giving an incentive to businesses to invest in assets. तो प्रोडक्शन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए इनकम टैक्स एक इंसेंटिव देता है. दीपक, एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ प्लीज. हाँ दीपक, इसमें ये था कि फाइनली जो हमारा इनकम टैक्स बनता है तो उसके लास्ट लाइन में जाके ये डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं या बीच में कहीं होता है उसके बाद फिर और फार्मूला लगते हैं? ये आप अपने इंडिविजुअल की बात कर रहे हो कि कंपनी की? नहीं, कंपनी टैक्स, कंपनी की. तो कंपनी में मनीष जी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है. ये क्या होता है कि कंपनी का अगर आपका हमारा प्रॉफिट लेटर से 1 करोड़ रुपया निकला है और उसमें लेटर से 10 लाख रुपए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है इन द कंपनीज अकाउंट, तो हम इनकम टैक्स में जब जाते हैं हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट 1 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख है. और अब फिर हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन. इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन normally will be about 1.5 and sometimes even 2 times of the depreciation which is allowed in the Companies Act. तो इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन लेटर से 20 लाख रुपए हो जाएगी. तो 1 करोड़ 10 लाख में से जब मैं 20 लाख माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट 90 लाख रुपए आएगा. मुझे टैक्स 90 लाख पे देना पड़ेगा, ना कि 1 करोड़ रुपए पे. तो नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं? नॉर्मली बिजनेसेस, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कई बार सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी के एसेट्स को अक्वायर करने के लिए 100% डेप्रिसिएशन दे देती है. जैसे अगर आप एक विंडमिल लगाते हो तो विंडमिल अगर आपने 5 करोड़ की विंडमिल खरीदी
तो आप उसको पहले साल में ही 100% डेप्रिशिएट कर लो। विंडमिल तो 20 साल की लाइफ होती है विंडमिल की। तो बिजनेसेस ऐसा भी करते हैं कि विंडमिल खरीद लेते हैं। मेरे को पता है कि मेरा प्रॉफिट आने वाला है, मेरा 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आने वाला है, तो मैं 5 विंडमिल खरीद लेता हूँ। 50 करोड़ रुपए जो है वो मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट में कम हो जाएगा। मेरा जो डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स है, क्योंकि वो 25 साल चलने वाली है, तो वो बड़ा नेग्लिजिबल डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। बॉटम लाइन ये है कि इन सब से कैश नहीं चेंज होता। जो मेरे कैश इन हैंड है वो नहीं चेंज होता, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से मेरा टैक्स चेंज हो जाता है। तो अब जो नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने कहा कि साहब ये कभी आप उठा के ये ऐसे एसेट्स खरीद लेते हो तो आपकी डेप्रिसिएशन, आपका टैक्स ही बड़ा कम हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, हम इसको अकाउंट, कंपनीज अकाउंट में जब हम इसका लेखा जोखा करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो हम नॉर्मलाइज करके उसको अकाउंट फॉर करेंगे, और कभी आपको बेनिफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, तो हम इस चीज को नॉर्मलाइज कर देंगे। सो कैश जो है हमारा अनचेंज रहता है। कैश उतना ही हमारा हाथ से निकलता है जितना कि हम एक्चुअली कैश पे करते हैं। ठीक है, थैंक्स, आई गॉट द आंसर। एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया कि ये एस्टिमेशंस होते हैं लीव एनकैशमेंट के, ग्रेचुइटी के, बैड डेट्स के। कई बार हमारे केस में, अगर मैं टीम कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकली बात करूं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, जैसे हमने आईडीबीआई का कॉन्ट्रैक्ट उठाया या एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, जो कि 2 साल 3 साल तक हमारे को उसकी सर्विसिंग करनी है। उस केस में हम उसके एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन लेते हैं, हालांकि वो एक्सपेंसेस हमने इनकर नहीं किए हुए होते, हम फिर भी उन एक्सपेंसेस को हम प्रोवाइड फॉर करते हैं और हम उनको इनकर करते हैं। तो हालांकि हमारा कैश नहीं कम होता, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये हम एडजस्टमेंट्स जो हैं ये इनकर करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द preparing the accounts on the cash basis. Now I come to the presentation of this accounting. So what happens that cash flow is a mandatory part of any audited financials. तो इसको समझने के लिए मैंने सोचा कि मैं रेडिंगटन का जो एग्जांपल है वो लेता हूं। सबको रेडिंगटन के साथ एक फेमिलियरिटी भी होगी, मेरा ख्याल है जितने इस कॉल पे हैं एटलीस्ट 70 to 80% शायद रेडिंगटन को जानते हैं इन सम फॉर्म और दिया। तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, ऑडिट इज बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो, दे आर टू बी प्रेजेंटेड टुगेदर। इसका रीजन है कि विदाउट लुकिंग एट द कैश फ्लो इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द P&L एंड बैलेंस शीट प्रॉपरली। दैट इज व्हाई these statements are supposed to be presented together. So रेडिंगटन का ये मैंने 2009 से लेकर 2020 तक का कैश फ्लो दिखाया है, और इसके अंदर जब हम कैश फ्लो दिखाते हैं तो एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी हैव टू शो इट इन 3 सेपरेट कैटेगरीज. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हमारे डेलिब्रेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, because investing activity and financing activity, these are not, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, operations is focused on operating activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब मैं बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा हूं, मैंने अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली या अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस इवेंट बट इट इज अ कैश फ्लो इवेंट.
तो उसको कैश फ्लो में प्रेजेंट करते वक्त हमने सेपरेट कर दिया, उसको ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया, लेकिन कैश फ्लो के अंदर रखा। और सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस कि हमने अगर कहीं से लोन लिए हैं, अगर हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया है, तो ये भी हमने उसको सेपरेट कर लिया। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज समथिंग दैट एवरीबडी लुक्स एट। अगर हम रेडिंगटन का देखें तो रेडिंगटन ने 10 साल पहले उसका नेगेटिव कैश फ्लो था, मतलब वो वर्किंग कैपिटल कंज्यूम कर रहा था। प्रॉफिट होगा उस बिजनेस में जरूर, ये सारे नंबर्स करोड़ में हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ। तो -100 करोड़ से शुरू करते करते अब वो पिछले 4-5 साल से काफी अच्छा कैश पॉजिटिव थ्रो कर रहा है इनटू इट्स बिजनेस। सो एवरी ईयर इट इज थ्रोइंग मोर एंड मोर कैश इनटू द बिजनेस। तो उसका नेट कैश फ्लो अगर हम लास्ट वाली जो बोल्ड में लाइन है वो देखें तो वो 1400 करोड़ के करीब उसके पास इस वक्त कैश पड़ा हुआ है। तो लास्ट ईयर उसने 650 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लगाया, व्हिच मींस दे मे हैव पेड ऑफ सर्टेन लोन्स एटसेट्रा। सो in the next slide I will expand the operating cash flow. So if you look at the cash from operating activity, ये ऊपर एक लाइन आ रही है, तो 2020 मार्च की लाइन की कॉलम को हम फोकस करते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इन्होंने कमाया 1100 करोड़, 1149 करोड़। डेटर्स इनके बढ़ गए, तो रिसीवेबल्स ने 450 करोड़ 449 करोड़ का कैश कंज्यूम कर लिया। इन्वेंट्री इनकी कम हुई बाय 406 करोड़, तो उसने 406 करोड़ रिलीज कर दिया। सिमिलरली इन्होंने पेएबल्स जो अपने इनके जो पेएबल्स हैं उनको थोड़ा पेमेंट डिले किया, तो 101 करोड़ रुपया वहां से कलेक्ट किया। तो जो डेटर्स की इन्होंने इंक्रीज करी 400 करोड़ रुपया, वो इन्वेंट्री से रिकूप किया और अपने वेंडर से पे किया। अदर देन वर्किंग कैपिटल इन्होंने 113 करोड़ रुपया खर्च किया, वो अकाउंटिंग में मुझे उसकी डिटेल मिल नहीं पाई। तो नेट इनका जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मींस बेसिकली इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, वो 55 करोड़ इन्होंने यूज किया इन द वर्किंग कैपिटल। एंड डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने पे करे 122 करोड़। तो अगर इस सबको टोटल करेंगे तो 966 करोड़ पर हम पहुंच जाएंगे। So this is the kind of cash that a company which in our business, in our trade rather, they are generating. So I hope this is lends a little clarity. For most of our company, I would like that we understand this slide very well. If you want, I can share this, I can request Gunjan to share this slide. And this is data which is available on the internet. There is a site called screener.in. उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, so that is available. And if anybody wants to contact me, I'm most welcome. You're most welcome. You can get in touch with me. So very simply put, no cash is equal to no business. And I think that brings me to the end of my session. Any question and answers, most welcome. So I'm getting off the presentation mode and I'm stopping sharing, and I will come back to the. Over to you, Gunjan ma'am. Yes, sir. So we have one question in the comment of the chat box. The question is, an airline company buys aircrafts which will be assets, but that will depreciate over time. Right. So while all these airline companies are showing losses, actually there would be cash surplus, but due to depreciation and taxes, would they go to losses? Who is questioning this? Can I know the person's name? Akash Shah. Akash, this is a very good question. So if you're talking about airline companies, the hard reality is that most of the airlines lease their aircrafts.
they don't buy them. Aircrafts are such expensive equipments that nobody has, most companies don't have cash to upfront the aircraft. So if you look at automobile companies ने ये credit का system चालू किया, where even if you have a small amount of money, you can go and you can pick up a car, balance you pay on EMI. So when the aircraft companies wanted to increase their sales, they also went into this model. So if you see, most of the aircraft companies have leased their aircrafts, and the lease rentals are part of what they have to pay immediately. It is not like depreciation, they have to pay it immediately. So that is why most of the airline companies are suffering such huge losses. Thank you, sir. So a follow-up question on it, sir. So let me change the example. Say for an insurance company, they would provision the possible claim amount, right? So they receive policy premiums, that is their revenue, and they would possibly provision the claim amounts. So the the results that they declare would include the provisioned claim amounts, not the paid claim amounts, right? So they would be cash flow rich, but उनके balance sheet पे ऐसा दिखता है, balance sheet as an annual report पे या quarterly report पे ऐसा दिखता नहीं. Is that the right understanding? Akash, I am very happy with your questions. So you are picking up industries which are under stress and which have a long gestation period. So insurance company का business क्या होता है? Insurance company ना, it takes 20 years to establish. So that is why insurance companies are called deep pocket companies. Because what happens is that insurance premiums, okay, are generally a fraction of the amount insured. आप अगर 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप बहुत थोड़ा पैसा देते हो, आप 1 करोड़ रुपया नहीं देते. आप उसकी इंश्योरेंस का बहुत, अगर आपने एक 15 लाख की गाड़ी खरीदी है तो आप उसके अगर एनुअल इंश्योरेंस पे करते हो तो 30,000, 20,000, 25,000 रुपया प्रीमियम जाता है, समथिंग लाइक दैट. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आल्सो. ओके, so unka cost of operation and insurance businesses, I'll get into it maybe some other time. Insurance companies are heavily regulated businesses. Okay, so they have to set up systems and answer to RBI and other government agencies, which is a cost in itself. It does not come for free. So uski jo insurance company ki jo startup ki jo cost hai वो इतनी ज्यादा होती है कि वो जब शुरू में प्रीमियम्स उसको कलेक्ट करने पड़ते हैं. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी में एक और बीमारी ये है कि आपके पास 2 कंपनीज आई, सेम गाड़ी है आपकी. एक कंपनी कहती है कि साहब मैं आपको 15,000 में इंश्योरेंस देती हूँ और दूसरी कहती है कि मैं आपको 14,000 में देती हूँ. तो आप नेचुरली 14,000 वाली लोगे. जो नई कंपनी आएगी इनटू द मार्केट, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसिंग ऑलरेडी मार्केट में पता है कि यार अगर मैंने एक मारुति गाड़ी करनी है तो मेरे को इतने प्रीमियम से ज्यादा तो मिलेगा ही, ठीक है. तो वो उसका एक ऑलरेडी एक सीलिंग फिक्स्ड है. दूसरी बात, उसको मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज उसको पहचानेगा कौन. उसको अपना प्रीमियम भी हो सकता है 2, 4, 5, 10% कम करना पड़े, सो दैट इट विल हैव टू attract the customer. It will have to pay slightly better salaries to agents because agents are used to working with the दीपक, जो मेरा सजेशन है ये वाला क्वेश्चन ऑफलाइन आकाश, इट्स अ वेरी टेक्निकल, वेरी सेगमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन. सो आई एम सॉरी आई एम बटिंग इन, but I would want Deepak you to take this because this will go over everybody's heads. Okay. और उनके इंटरेस्ट एरिया से अलग है. सो आई वांट टू थोड़ा सा इसको जो आपने बोला बहुत अच्छा सेशन लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ सबके लिए. यू नो देयर आर people who want to know free cash flow, discounted cash flow, all that. पहले तो मैं उससे भी सिंपल एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो आज जो सेशन लिया ना हमने कैश फ्लो का, इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो मैं अपने बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. कैश इज लाइक ऑक्सीजन. ओके, आजकल जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा है. तो रूम में जब हम फिल्टर लगाते हैं
तो कमरे को बंद रखते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। कमरा के दरवाजा खोलेंगे तो ऑक्सीजन, दीपक एक कमरे में बैठते हैं दिल्ली ऑफिस में, उसका दरवाजा बंद रखो तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो आप अपना घर नहीं चला पाओगे और आप अपना जो है बिजनेस भी नहीं चला पाओगे। तो कैश जो है वो चीज है जो आपके पास नकद पड़ा हुआ है, कैश जिसको कहते हैं। कई बिजनेसेस, चावड़ी बाजार जाओ दिल्ली में तो कैश रहता है उनके पास, एक्चुअली कैश रहता है, या फिर बैंक में पड़ा हुआ पैसा मेरे पास। तो मेरे पास ऐसे फॉर्मेट में पड़ा हुआ है जो कैश के करीब है। अगर बैंक में भी है तो मैं बैंक से निकाल सकता हूँ जल्दी से। अगर मेरे पास स्टॉक्स में पड़ा हुआ है तो स्टॉक एक एसेट है, मेरे को बेचना पड़ेगा तब जाके कैश में कन्वर्ट होगा। अब कितने में बिकेगा वो बात अलग है। तो हम लोग सब कंपनी चला रहे हैं टीम कंप्यूटर्स। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कैश हम अपने पास रखें, ना कि मार्केट में हो। तो एक अच्छा बिजनेसमैन जल्दी कलेक्ट करता है, देर से पैसा देता है। देर से देता है मतलब जो कमिटमेंट है वो रखता है। अगर हमने रेंटन को बोला हुआ कि भाई 60 डेज में देंगे तो 60 डेज में देंगे, पर कलेक्ट हम 30 डेज में करेंगे। पूरी जो हमारी मैकेनिज्म, विवास दास की टीम है और जो डिलीवरी टीम है, पुनीत खारे की टीम है, दैट एंटायर डिलीवरी टीम का पूरा जो फोकस है वो फोकस है कि जल्दी से प्रोजेक्ट करो, पेमेंट कलेक्ट करो और पेमेंट हमारे बैंक में हो। So we have invested a huge amount of money. You look at some companies which are doing well like Amazon. Amazon आपका फटाफट पैसे ले लेता है, जब आप ऑर्डर करते हो पैसे ले लेता है वो। तो दीपांकर टॉक्ड अबाउट नेगेटिव, माल देने से पहले ही पैसे ले लेता है। उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब मेरे को अपने पैसे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को जो कस्टमर से एडवांस आ गया। दैट इज एक्सेलेंट। अगर हम एडवांस ले लें तो सेल्स टीम हमारी जो है, अगर वो एडवांसेस में काम करने लग जाए, हर कस्टमर को बोले सर एडवांस दे दो, आप 50% एडवांस दे दो या 80% एडवांस दे दो, दैट इज ग्रेट। दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग कैश वेल। हम कैश पहले ले रहे हैं अपना, और जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड हम ले सकें, 50 डेज, 60 डेज, 90 डेज, और ये देख के कि कस्टमर का बिहेवियर क्या होगा। कस्टमर हमें 80 डेज बोलता है बट 90 डेज देता है। कैन वी टेक 100 डेज और 120 डेज फ्रॉम सप्लायर? तो ऐसा पहले कलेक्ट करो तो अच्छी बात है कैश फ्लो के लिए। दूसरी बात, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ नेगेटिव ऑन कैश। जब हम माल अपने पास रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, एक तो स्टॉक की वैल्यू कम होती है, वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारा कैश वहां ब्लॉक्ड है। तो आइडियली इन्वेंट्री शुड बी 0 या 1 डे या 2 डेज। माल आया, माल गया। हमने आजकल घिटोरनी में से वेयर हाउस हटा के कापासेड़ा लेके जा रहे हैं। घिटोरनी में एक ही ट्रक लगता था, कापासेड़ा में 4 ट्रक लग सकते हैं, 2 इनकमिंग, 2 आउटगोइंग। तो व्हाई शुड वी कीप गुड्स इन आवर ट्रांजिट में गुड्स? हम अपने यहाँ क्यों रखें? माल आएगा उसी दिन जाएगा, आवर्स में चला जाए, नॉट इन डेज एंड वीक्स के अरे अभी तो कल आया है सर, अभी पड़े रहने दो, थर्सडे को आया है, हम मंडे को निकालेंगे। जो सैटरडे संडे है ना, मीटर चल रहा है, पैसे का मीटर चल रहा है। कोई सैटरडे नहीं है, कोई संडे नहीं है। अगर आपके वेंडर ने, इंग्रम ने बिल कर दिया, रेडिंगटन ने बिल कर दिया, उसका मीटर चालू हो गया। अगर हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक ये नहीं देखता है कि भाई सैटरडे संडे आज इंटरेस्ट मत लगाओ, बैंक तो रोज इंटरेस्ट लगाएगा। तो सैटरडे संडे, दिवाली, दशहरा, ये हर बिजनेस के लिए बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्योंकि इसमें कोई बिजनेस तो होगा नहीं, पर आपका स्टॉक ब्लॉक रहेगा। अगर आपने स्टॉक लेके रख दिया अपने पास, 1 घंटा भी ज्यादा रखा है, तो आपका कैश ब्लॉक हो गया, आपका पैसा इन्वेंट्री में गया, इन्वेंट्री आपके वेयरहाउस में पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो तीसरी बात, सो इन्वेंट्री इज अ नेगेटिव। इतनी ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी रहेगी आपके पास, आपके वेयरहाउस में माल पड़ा रहेगा, आपको नुकसान हो रहा है, टीम कंप्यूटर्स को नुकसान हो रहा है। हमारे वेयरहाउस में रहना ही नहीं चाहिए माल।
कायदे से वेयर हाउस ही नहीं होना चाहिए, बट वेयर हाउस हमने रखा हुआ है क्योंकि हमको कंसोलिडेट करना पड़ता है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर लगाना है, 3 जगह से मटेरियल आ रहा है फिर जा रहा है। वेयर हाउस अगर नहीं रहे तो बेस्ट है, सीधे माल डायरेक्टली डिलीवर हो जाए। माल डिलीवर होने में टाइम लगता है, इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, दैट इज ऑल हर्टिंग आवर कैश। जितनी जल्दी हमको कैश आ जाए वापस हमारे पास हमारे बैंक में उतना बेटर है। आपके सबके लिए ये समझना जरूरी है। दूसरी बात, कैश कहाँ जाता है? अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, हमारी ऐसी कंपनी में हम लोग नोटबुक्स खरीदते हैं, जितने नए लोग आते हैं कायदे से वी शुड एनकरेज पीपल। जब सीबी ने ज्वाइन किया, सीबी को बोला अपना नोटबुक लेके आ, अपनी गाड़ी लेके आ, अपना स्कूटर लेके आ, अपना पेन लेके आ, अपना पेंसिल लेके आ, अपनी डायरी लेके आ। तो ये जितने भी एसेट्स हैं जब हम खरीदते हैं, हमारा कैश वहां भी ब्लॉक होता है। तो जहां ब्लॉक हो गया वो कैश हमारा फ्री नहीं है, जहां ब्लॉक नहीं हुआ कैश हमारे पास है वो फ्री है। फ्री का मतलब क्या हुआ? जो कैश को हम यूज कर सकते हैं, जो जहां मर्जी चाहें। हम हो सकता है शेयर होल्डर को वापस दे दें, हो सकता है हम बैंक में पड़े रखें, हो सकता है कोई नई फैक्ट्री लगाएं, हो सकता है एक नई बिजनेस लगाएं। जब कैश हमारे हाथ में है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश। तो निजाम, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन आई होप। ओके, नाउ एक सीबी का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कंपनी की वैल्यू जो निकालते हैं ना, वो निकालते हैं भैया इस साल। अभी इन्होंने रेडिंगटन की बैलेंस शीट दिखाई, 1000 करोड़ के करीब उन्होंने पिछले साल जनरेट किया, 1000 करोड़ फ्री कैश उन्होंने कैश जनरेट किया रेडिंगटन ने। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे भैया इस साल कितना करेगा, अगले साल कितने करेगा, अगले 10 साल कितना करेगा, उस सबको टोटल कर लें, वो रेडिंगटन की वैल्यू हो गई। बट 10 साल बाद जो कैश आएगा वो आज तो नहीं है ना हमारे पास। तो अगर मैं उसका कॉस्ट लगाऊं 10%, 6%, जो भी कॉस्ट लगाऊं 12%, आज मेरे पास कैश होता तो मैं यूज करता, मेरे पास 10 साल बाद आएगा। तो 100 रुपए अगर 10 साल बाद आएंगे तो आज उसकी वैल्यू शायद 10 ही रुपए होगी। अगर मैं 10% से मोटा मोटा डिस्काउंट करूं, 50%, सो डिपेंड करता है मैं किस रेट पे डिस्काउंट करता हूं, क्योंकि आज मेरे पास वो पैसा नहीं है। तो अगर 5 साल बाद मेरे पास 100 रुपए आएंगे और मैं डिस्काउंट करता हूं, तो आज मेरे पास उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपए लूंगा। इन सबको टोटल कर दूंगा तो मेरे को डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ जो बोलते हैं, टोटल वैल्यू एक मिल जाएगी कि आज ये कंपनी की वैल्यू क्या है। तो आज अगर टीम कंप्यूटर्स में इस साल हम 100 करोड़ कैश जनरेट करते हैं, अगले साल 150, अगले साल 200, तो 3 साल बाद की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 300 प्लस 200 प्लस 100, 600 रुपए, 600 करोड़। बट 300 हमारे पास बाद में आएगा, अभी नहीं है। तो अगर मैं 2 साल उसको डिस्काउंट करूंगा 10%, 10%, तो 20% कम कर दो, तो 300 की वैल्यू 240 होगी। 240 प्लस 200 की वैल्यू 10% कम करो, 180, तो 240 प्लस 180 प्लस 100, 100 अभी है इस बार मेरे पास, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। सीबी, आई होप दैट answers your question, that if you are going to buy something, let's say you are going to buy a flat to rent it out, आपको किराए पे देना है, 100 रुपए किराया उसका, ठीक है, हर साल का। तो आपके लिए वैल्यू क्या रहेगी? आप कैलकुलेट कर लो, अगले 10 साल हर साल 100 रुपए आ रहे हैं, पर 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 ही रुपए है। आज नहीं है आपके पास। आज आपके पास अगर कोई बोलेगा भैया कितने में बेचूं, तो आप ऐड करोगे 10 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50, 40, 30, 10, टोटल ऐड कर दो, वो आपके फ्लैट की वैल्यू हो जाएगी कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत तरीके हैं कंपनी को वैल्यू करने के लिए। एक तो हो गया पड़ोस में फ्लैट कितने में बिका है, वो एक तरीका होता है वैल्यूएशन का। हमारी जैसी कंपनी, टीम कंप्यूटर जैसी कंपनी के मार्केट में क्या वैल्यू है। अब अलाइड डिजिटल जैसा कंपनी ने आईपीओ किया, दे डिड नॉट यूज द कैश वैल्यू, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो उनकी वैल्यू उन्होंने भट्टा बिठा दिया। कल को कोई हमको कंपेयर करेगा अलाइड डिजिटल से, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इफ दे कंपेयर अस विद विप्रो, दैट इज अ गुड थिंग।
Okay, so who should an investor compare you with? That is very important. मेरा फ्लैट दूसरे फ्लैट से ज्यादा बेटर है. दीपक एक मिनट और लूंगा. एक मिनट और लूंगा. आपको शाउट की स्टोरी सुनाओ सर. शाउट के बारे में कल हमने कैश की इतनी बात करी है, एक बार जरा सबके लिए वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है सर. हाँ, शाउट में क्या ऑक्सीजन खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि यार जब जरूरत होगी ना तब कैश जनरेट करेंगे. कैश हमको एक्स्ट्रा अपने पास रखना है, बैंक में रखना है. कैश हमारे पास होना चाहिए हमारे बैंक में. शाउट ने क्या किया? इट्स अ न्यू स्टार्टअप, सोशल मीडिया स्टार्टअप. पैसा कलेक्ट किया नहीं. यू नो दैट स्टार्टअप्स रेज मनी. Okay, and so keep the money in your bank because initially you are not generating profits. Startup जो होता है उसके profit बाद में आते हैं. So they have something called मतलब negative cash. वो they will burn cash. उनका cash flow negative है. मतलब वो हर साल जो है जितना खर्चा है वो burn करते हैं. तो BYO ने जो है सोशल मीडिया शाउट जो ये बोल रहे हैं, शाउट पहले नाम होता है सर, अब BYO नाम है. कंपनी का नाम शाउट है अभी भी. उनका कैश खत्म हो गया. कैश खत्म हो गया तब दुकान बंद करने वाली बात आ गई. क्या करें? कल मेरे से मीटिंग हुई थी, दीपक भी थे, कि सर कंपनी बंद कर दें क्या. ये वाली मीटिंग थी. इट्स अ वेरी सैड टाइम व्हेन यू हैव टू शट डाउन. सो वी वर डिस्कसिंग दैट कि बॉस कैश नहीं होगा तो बंद कर दो कंपनी को. ठीक है ना. तो there is I hope I've been able to generate from all of you are managing the company. From your point of view, why are we spending so much of money on internal engineering? पूरी टीम खड़ी की हुई है ताकि टाइम एंड मनी आर कनेक्टेड वेरी क्लोजली. हमारा पैसा जल्दी आ जाए वापस हमारे पास. जल्दी इज टाइम. तो पैसा जब जल्दी आ जाएगा, दैट कंपनी विल बी हेल्दी. अब कई बार जो है या तेजस इज सेइंग वेज टू इंप्रूव कैश फ्लो, लीज एंड डोंट बाय. कई लोग हैं अपना मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कई लोग गाड़ियां लीज पे लेते हैं. आजकल उबर आ गया, ओला आ गया, तो हम कहते हैं गाड़ी क्यों खरीदें, जब चाहिए तब यूज कर लेंगे. एवरीथिंग एज अ सर्विस. सो डेल ने क्या निकाला है? डेल कहता है यार मेरे को पैसा आधे % में 1% एनुअल रेट में मेरे को मिल रहा है, मैं आपको देता हूं ना, आप यूज करो. आप अपना पैसा क्यों लगा रहे हो? एवरीथिंग एज अ सर्विस. आई विल गिव यू अ डेस्कटॉप, यू पे मी ओवर 1 year, पे मी ओवर 2 years. मैं नेटवर्क देता हूं आपको, मैं स्टोरेज देता हूं, पे मी एज अ सर्विस. क्लाउड का जो मॉडल है. डेटा सेंटर क्यों लगा रहे हो सर? अपना हमारे से यूज कर लो, गूगल क्लाउड, अमेजॉन क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड. सो अमूल्य इज राइटिंग, या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इज अ बेटर थिंग. कि जब मेरे को चाहिए एक दिन में अगर मेरा माल आ जाए जस्ट इन टाइम, वेरी गुड. वी शुड नॉट ओवर स्टॉक. अब हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम लोग स्टॉक रखते हैं. जो छोटे वैल्यू आइटम है, आटा, दाल, चावल, इनका स्टॉक रखते हैं. जो महंगी आइटम है उनको हम फ्रेश लेते हैं. अगर हमको पता है कल जरूरत होगी, कल 5 किलो है, परसों 2 किलो है, टोटल करके हम 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन की इन्वेंट्री से ज्यादा नहीं मंगाते हैं. एक जमाना था जब लोग सालों साल की इन्वेंट्री मंगाते. माल मिल रहा है उठा लो. आज के दिन में कोई नहीं करता है वो काम. एवरीबॉडी हैज रियलाइज कि पैसा ब्लॉक नहीं करना है. अब उसकी प्रॉब्लम भी है. अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो आपके पास फैक्ट्री नहीं है. ब्लैक मैजिक के पास टोनर खत्म हो गए थे. चाइना जब बंद हुआ कोविड में शिपमेंट ही नहीं आ रही थी. तो हमारे पास रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया अपने बिजनेस का. तो रॉ मटेरियल में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. आटा, दाल, चावल फॉर अ रेस्टोरेंट, toner for black magic. Okay, raw material we have to be very careful. We have to have enough stocks. Okay, so I thought I will थोड़ा हिंदी में आप लोगों को बताऊं कि कैश फ्लो है क्या. आकाश, I didn't want to disturb. My idea was कि आप गहराई में, दीपक is always available. You can do a detailed hangout. Nizam, Akash, Sibi, I can see your questions are of an advanced level, which is very good. तो एडवांस लेवल क्वेश्चंस आप दीपक से ऑफलाइन ले लो. सो बैक टू दीपक, बैक टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू. So I think Ranjan sir moderated quite well. Nizam, what is free cash flow?
what is the significance? I think Ranjan sir has shared. Basically, I'll just add to that free cash flow is a very essential concept in business. What it means is that your business evidence of free cash flow, अगर की free cash flow है, तो वो एक बिजनेस का एक एविडेंस है कि वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है. जैसे डॉक्टर, हम कोविड टाइम में सबसे पहले 2 चीजें मेरी वाइफ मेरे रोज सवेरे देखती है, एक मेरा ऑक्सीजन लेवल और एक मेरा टेम्परेचर. वो घर से बाहर निकलने नहीं देती है मेरे को विदाउट वॉचिंग दिस टू. सो सिमिलरली फ्री कैश फ्लो इज ऑक्सीजन मीटर ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो उसके अंदर इनफ ऑक्सीजन है, वो सर्वाइव कर जाएगी. तो फ्री कैश फ्लो measurement is a measurement of the health of the company. फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपके इंजन ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है, आपके जो कलेक्शन सिस्टम्स हैं, आपके जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ घड़ी की तरह टिक 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 करके आपके पास एक सर्टेन कैश बच जाए. तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री कैश फ्लो, दैट इफ वी हैव कंस्ट्रक्टेड आवर बिजनेस. अब जैसे अगर हमारे बिजनेस के अंदर विवास दास और उसकी टीम जो बहुत बढ़िया काम कर रही है मेरे हिसाब से, अगर वो अपना सारा काम ऑन टाइम वो करते रहेगी, तो हमारा एक मेजर्ड लाइक अ मेट्रोनोम होता है जो एक म्यूजिक का एक बीट रखता है, वो मेट्रोनोम की तरह वो हमारा टक 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 करके वो कैश जनरेट होता रहेगा, फ्री कैश आता रहेगा. तो दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो डज नॉट मीन दैट द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. इट विल ग्रो, हम और बिजनेस करेंगे, लेकिन उस और बिजनेस से हम और कैश जनरेट करेंगे. दैट इज व्हाट फ्री कैश फ्लो मीन्स बेसिकली. Thank you, sir. I know we are slightly over time, but there was one question which just remained unanswered. If you could just explain that in brief. So the question, while filing depreciation with income tax, how do we offset the inconsistency? We might have to write off the asset as per the income tax balance sheet, but we still continue to have that asset in company's profit and loss. Right. Like I said, income tax के जो rules हैं वो यूज होते. इनकम टैक्स इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सबकी जेब वो पैसे बांट दे. अब पैसा बांटना इज अ एक्सपेंसिव थिंग फॉर द गवर्नमेंट. दूसरा है कि वो लोगों को, बिजनेसेस को इंसाइट करे टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट दे वांट देम टू गो. सो गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल मिशन है कि हम क्लीन एनर्जी करें. अगर एनर्जी क्लीन होगी तो पोल्यूशन कम होगा, और इसको करने के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिव देते हैं तो वो टैक्स के जरिए से देते हैं. तो जब टैक्स के जरिए से वो देते हैं तो होता क्या है कि मेरी जो इनकम टैक्स की जो बैलेंस शीट है, और इनकम टैक्स में बेसिकली बैलेंस शीट नहीं फाइल होती, इनकम टैक्स में P&L की कैलकुलेशन फाइल होती है बस. तो वो मैं इनकम टैक्स को दे देता हूँ, और मेरी कंपनीज एक्ट की जो बुक, मतलब जो मेरी बुक मेरे शेयर होल्डर्स को जाती है और मेरे इन्वेस्टर्स को जाती है और मेरे बैंकर्स को जाती है, और जितने और मेरे लोग हैं जो मेरे बैलेंस शीट यूज करते हैं, उनको मैं कंपनीज एक्ट में ही की बैलेंस शीट ही देता हूं, और उसमें वो एसेट्स रिजाइड करते हैं. उसमें वो राइट ऑफ नहीं होते, वो एसेट्स रहते हैं हमारे पास. Thank you, sir.